Welcome everybody in our PN study group. As we all know, we have gathered here to understand a CBSE chapter of physics that is belonging from standard 10th, and it is electricity. So today we will deal about the most fundamental chapter, because if we know in this world, in this modern world, everything, whatever is going on and whatever is in front of us, any type of device which is needed to be work in the form of mechanical section, it needs a supply, it needs an energy, and that energy is electrical energy. So before understanding about that energy, we must know about the fundamental, that what is electricity. As this group is very evident for all of us, it has many sections. It will deal also about whatever is regardable for the reasoning, maths and GK, general studies, and whatever is there with us, it will be belonging to you as on this channel PN study group. And you will also get from the lower sections to the upper sections up to class 10 CBSE chapters. Whatever the doubts will be there, you can share in the comment section, and don't forget to subscribe it. Press the bell icon. Okay, now we will start electricity. So first of all, we have to know this topic, that what is electricity. Okay, so we know it is an arrangement in which electrical energy is supplied. Okay, we have right now on the board is there. It is an arrangement in which electrical energy is supplied through a material capable in carrying the energy particles called charges. This arrangement of carrying charges through a material is called इलेक्ट्रिसिटी. बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि इट इज जस्ट अ सप्लाई. तो व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई? वी नो everything comes out when we go to from initial to the final stage, whatever the knowledge we should gain. जो ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं वो कभी भी किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे नहीं भागेंगे. उनको चाहिए वो 100%, जो 100% आपको ये ग्रुप दे सकती है. नाउ सी देयर, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड थ्रू a material capable in carrying the energy particles. हम यहाँ कुछ नहीं भी लिख सकते थे. यहाँ जो capable वर्ड हमने यूज किया है, यहाँ हम नहीं लिख सकते थे. शॉर्टकट में लिख कर छोड़ देते हैं, या अपने को थोड़ा सा और फॉरवर्ड ले जाने के लिए हम ये काम कर सकते थे. वी कैन गो इन शॉर्टकट, बट शॉर्टकट नाइदर लीड्स टू द डेस्टिनेशन.
शॉर्टकट कभी भी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाता है. यू शुड टेक अ लॉन्ग रूट. ओके, नाउ टेक थ्रू अ मटेरियल कैपेबल, यानी एक अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी होती है, सप्लाइड होती है थ्रू अ मटेरियल जो कि कैपेबल होता है चार्ज को या एनर्जी पार्टिकल को ही चार्जेस कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करती है. एनर्जी पार्टिकल को कैरी करने में जिन्हें चार्ज कहते हैं. दिस अरेंजमेंट ऑफ कैरिंग चार्जेस थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. यानी इस चार्ज को कैरी करने का, यानी जो अरेंजमेंट है जो जिससे चार्ज कैरी होता है किसी मटेरियल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, नाउ आपके मन में शंका हो रही होगी कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने तो लिख दिया कि एनर्जी पार्टिकल, इससे ही थोड़ी डिफाइन हो जाएगा, इससे नहीं डिफाइन होगा. मैं अपने आप पे क्वेश्चन डालता हूं. कोई भी टीचर अगर सामने वाला तब तक संतुष्ट, उसको नहीं समझ में आता है, तब तक टीचर संतुष्ट सामने वाले को देखकर तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसे अपने आप पे ये महसूस ना हो कि जो चीज मैंने बताई है वो सामने वाले में भीतर इम्बाइब हो चुका है या नहीं, यानी समाहित हो चुका है कि नहीं. तो वी मस्ट नो दिस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? नाउ चार्ज. सारा खेल इसी पर है, ये पूरा खेल इसी पर है. अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं. The energy particle which resembles the electrical energy of electron or proton. Electron or proton has a subatomic particle of material carrying the particle. देखिए, now must we focus on this board because here is something which is in favor of you. यहाँ पे कुछ दिया गया है जो मैंने लिखा है, जो कि आपको ये समझाएगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है. Now, the energy particle which resembles the electrical energy of electron or proton as a subatomic particle of material carrying the particles. कहने का मतलब ये है, जो मैंने लिखा है उसको सिर्फ लिख देने से नहीं होगा. पेन पेपर ले लिए, लिख दिए, कोई चीज लिख कर रख दिए, नोटबुक बंद हो गया, कहानी खत्म. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. You should go with the theoretical with practical. देखिए, the energy particle which resembles, यानी जो एनर्जी पार्टिकल ये बताता हो, समझाता हो या ये प्रदर्शित करता हो कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि हम लोग जानते हैं कि दे आर द सब एटमिक पार्टिकल्स. तीन तो हैं, तीन तो जो फंडामेंटल आपको पढ़ना है, तो तीन तो पहले से दिए हुए हैं आपके बुक में, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर एनर्जी से बाउंड होकर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है. कोई भी एटम का, चाहे दुनिया का कोई भी केमिकल कंपाउंड क्यों ना हो, ठीक है. द एनर्जी पार्टिकल विच रिसेंबल्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
उसको रिसेंबल करता है, दिखाता है एज अ सब एट, जो कि एक सब एटमिक पार्टिकल है उस मटेरियल के जिससे वो पार्टिकल गुजर रहा होता है, कैरी हो रहा होता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि चार्जेस नेचर से दो ही तरह के होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ऐसे तो टाइप्स ऑफ चार्जेस बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसको अभी हमको नहीं पढ़ना है, बिकॉज अप टू द क्लास 10th लेवल यू हैव ओनली टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज। ओके, तो नेचर ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज विल डिनोट टू प्रोटॉन, बिकॉज यू नो द प्रोटॉन कंसिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज subatomic particle. It is also called positively charged subatomic particle. It lies in nucleus and it lie in the orbital. ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स में होते हैं, जो कि आपको आगे पढ़ना होगा क्लास 11th में, अबाउस प्रिंसिपल, SPDF। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि प्लैनेट की तरह गोल 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 घूमता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी क्लॉकवाइज एक बार एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में, तो एक एंटी क्लॉकवाइज गया, एक क्लॉकवाइज गया, ठीक है, तो दोनों कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि एक साइकिल घूमते रहे एक के पीछे एक के पीछे, रेडियल एक्सेलरेशन बढ़ने के चलते टकरा भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि सब एटमिक पार्टिकल हैं, जो ये ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो ये बताता है कि इन दोनों के ऊपर कितना कितना उनका वैल्यू है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिससे ये आगे के प्रोसीडिंग को डेवलप कर पाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, अब देखें, इसको बताया था आपके हेनरी फ्रेडरिच कोलम्ब, उनका पूरा नाम हेनरी फ्रेडरिच कोलम्ब। That's why the SI unit of charge, क्योंकि जो कोई थ्योरी डिस्कवर करता है उनका टाइटल जो है, यानी उनका टाइटल हम कभी भी SI यूनिट रख दिया करते हैं। हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जो लोग इस फिजिकल क्वांटम को या फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट निर्धारित करते हैं, वो एज अ डिस्कवरी उनके टाइटल को यूनिट रखते हैं, SI यूनिट ऑफ, you should write better, SI unit of charge is coulomb, that is denoted by C. Okay, एक प्रोटॉन जो होता है, there is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. One electron, or we can also denote it as E minus, minus 1.6 कहने की आदत थोड़ी उल्टी है, लेकिन हम लोग को आदत पड़ चुकी है पॉइंट पॉइंट कहने की। पॉइंट कहा नहीं जाता है, वी कैन से इट 1.6। ओके, ये बात आप लोग सभी लोग जान ले। मैंने उल्टा इसलिए बोला क्योंकि मैं इसे सीधा करके आपको बता सकूं। 1.6 नहीं कहेंगे इसे, 1.6। 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम, हेयर इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम, one electronic charge, one protonic charge. Okay, so this is all about charge, electricity. Now we will read the other topic in next session, so continue with us, subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.